Hello student, today I will teach you chapter 2nd. Today my topic name is Kingdom Monera. In Kingdom Monera, you see the first point. The Kingdom Monera includes prokaryotic organism. It means in this kingdom which organism are included are there prokaryotic. All the organism included prokaryotic. Pro it means lack of nucleus, जिनकी सेल में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होते हैं तो उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. सो इन दिस किंगडम बिलोंग आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म. Mainly the kingdom Monera are divided into the archaeo and eubacteria, and eubacteria included the cyanobacteria and mycoplasm. Now second point is there. They occurs almost everywhere and some of them live in extreme habitats such as hot water, springs, desert, snow and deep oceans where very few other life forms can survive. It means this type of organism they are found in everywhere. कहीं पे भी पाए जाते हैं, किसी भी कंडीशन में ये सर्वाइव कर जाते हैं. इनका जो हैबिटेट मीन्स होता है आवास. सो इन दिस type of organism they are survive in extreme condition like a hot, गर्मी भी हो, स्प्रिंग हो या डेजर्ट है, रेगिस्तान के एरिया में भी ये सर्वाइव करते हैं, स्नो एंड डीप ओशंस ऑल्सो. वेयर वेरी फ्यू अदर्स life forms can survive. So nutritionally they may be photosynthetic, autotrophs, chemosynthetic autotrophs and heterotrophs. In heterotrophs including a saprophytes, parasites and symbiotic. So nutritionally it means they may be a photosynthetics. ये अपना जो फूड का फॉर्मेशन करते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं. So this one is called the autotrophs. And some organism are in chemosynthetic. They are present the chemical, they are form the food in the presence of light. And or heterotrophs it means they dependent for food in any other organisms. तो इस तरीके का जो organisms होते हैं वो kingdom Monera में included होते हैं. Now kingdom Monera are divided into the two parts. In kingdom Monera divide the two parts. First one is there the archaeobacteria and second one is the eubacteria. Archaeobacteria is also known as the ancient bacteria. आर्कियोबैक्टीरिया को एंशिएंट बैक्टीरिया भी कहते हैं एंड यूबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज द ट्रू बैक्टीरिया. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द आर्कियोबैक्टीरिया. सो इन आर्कियोबैक्टीरिया डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द आर्कियोबैक्टीरिया. सो आर्कियोबैक्टीरिया दे आर स्पेशल moneras since they live in hot and extreme harsh habitat due to their the special cell wall structure. आर्कियोबैक्टीरिया जो होती है वो सबसे स्पेशली मोनेरा किंगडम की बैक्टीरिया है जो दे लिव इन मोस्ट एक्सट्रीम हर्श हैबिटेट्स. इस तरीके के ऑर्गेनिज्म किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं एंड दे प्रेजेंट इन द हार्श हैबिटेट ड्यू टू देयर द स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर. इनकी जो सेल की जो वॉल की स्ट्रक्चर होती है वो एक स्पेशल कैरेक्टर से होती है जिसकी वजह से ये हार्श हैबिटेट में भी सर्वाइव करते हैं. नाउ दे आर इंक्लूडेड इनटू द थ्री ग्रुप्स. फर्स्ट वन इज द हेलोफिल्स and second is there the thermoacidophils and next one is the methogenous. Now we discuss about there the halophils. Halophils occurs in extreme salty area. Halophils जो बैक्टीरिया है वो सॉल्टी एरिया में ज़्यादातर हमें दिखाई देती है, वहाँ पे पाई जाती है. इट मीन्स दे सर्वाइव इन द सॉल्टी एरियाज. एंड थर्मोएसिडोफिल्स फाउंड इन द हॉट स्प्रिंग. ये बहुत ही हॉट स्प्रिंग जहाँ पे जो एरिया होते हैं वहाँ पे ये पाई जाती है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ द मेथोजेनस. मेथोजेनस जो होते हैं ऑकर्स इन मर्शी एरिया, गट्स ऑफ सेवरल ruminant animals like a cow, buffaloes and are responsible for the production of methane gas from this type of organism. So methogenous it means they produce the methane gas.
So this type of bacteria, they produce the methane gas like a गोबर गैस, जिसे हम बायोगैस भी कहते हैं. So biogas is the genuine name is there. And methogenous is there the occurs in marshy area, guts of several ruminant. ruminant मतलब जो जैसे काऊ है, बफेलो हो, मतलब जिसे हम कहते हैं जुगाली. जुगाली वाले जो जानवर होते हैं जिनके प्रॉपरली माउथ क्या होते हैं कि चलते रहते हैं, उन गट्स में होता है स्टमक. उनके स्टमक पे इस टाइप की बैक्टीरिया पाई जाती हैं जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं प्रोडक्शन ऑफ मीथेन के लिए, मीथेन के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है. और जिससे आप देखते हैं जो गोबर गैस या बायोगैस जो होता है वो इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से उसमें से मीथेन का प्रोडक्शन होता है उसमें. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज देयर द यू बैक्टीरिया. सो we will discuss about the eubacteria. Now next topic is the eubacteria. So eubacteria is the true bacteria. इन्हें हम true bacteria भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो होती हैं इनका जो सेल होता है वो डेवलप्ड होता है प्रॉपरली. So they are the mostly unicellular or may occurs as colonies. Unicellular it means they form by the single cell structure. ये ज़्यादातर जो होती हैं वो सिंगल सेल की बनी हुई होती हैं. और मे ऑकर्स एज कॉलोनीज़, ये पाई जाती हैं मतलब झुंड में, कॉलोनीज़ एरिया में. सो दे पोसेस अ रिजिड नॉन सेलुलोसिक सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होती है, जो नॉन सेलुलोसिक सेल वॉल इसमें पाई जाती है और वो बहुत ही रिजिड होती है. नाउ बेस्ड ऑन देयर शेप, eubacteria are grouped into the 4 categories. शेप के बेस पर इन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ द कोकस, सेकेंड इज़ बैसिलस, नेक्स्ट वन इज़ द स्पाइलियम एंड लास्ट वन इज़ द विब्रियो और कॉमा शेप. सो दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया इट्स अ कोकस. कोकस इट मीन्स स्फेरिकल शेप. इट मीन्स इनका जो सेल का स्ट्रक्चर होता है उसके बिहाफ पर इन्हें डिवाइड किया गया है. सो कोकस बैक्टीरिया इज स्फेरिकल. कोकस बैक्टीरिया इज स्फेरिकल बेस्ड ऑन देयर शेप. Bacillus is the rod shape, Spiralium is the spiral shape and Vibrio is the comma shape. Now see the figure for you understand. Now see the diagram. First you see this one is the spherical in shape, that's called the cocci. Next one is there the bacilli. It means this one is the rod shaped spoon shaped. Now next one is the spiral. Spiral shape is there having a flagella, and this one is the comma shape. This is called the vibrio. So according to the shape they are different in shape. So how much type of eukaryotic bacteria behalf of the shape. So this one is the cocci. Next one is the spoon shape. They are rod shaped like structure is called the bacilli. It's have a spore also in the center in here. Now spiral is there. This one is the spiral shape and having a flagella also. And next one is the comma shaped bacteria. So this type of bacteria are found in the eukaryotic cell. Now next point we discuss about fruit. They have very simple structure but very complex behavior and metabolic diversity. ये जो स्ट्रक्चर में होती है वो बहुत सिंपली होती हैं, बट इनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है. सो नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिशनली दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स. जो इनका न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप है वो किस टाइप से ये अपना फूड का फॉर्मेशन करती हैं. सो दे मे बी अ फोटोसिंथेटिक, ये जो होती हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड का फॉर्मेशन करती हैं. इट मीन्स दे आर द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स. सम आर दे आर द कीमोसिंथेटिक एंड सम आर दे आर द हेट्रोट्रॉप्स.
Now next point, the heterotrophic forms are most abundant. They act as the decomposer, fix atmospheric nitrogen in legume roots and play a great role in recycling of nutrients. जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होती हैं वो क्या करती हैं कि डिकम्पोज़र का वर्क करती है. डिकम्पोज़र इट मीन्स जो डेड सब्सटेंस होते हैं उसमें से जो यूज़फुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको डिकम्पोज करती हैं, सॉइल में मिक्स करती हैं डेड ऑर्गेनिज्म से. सो फिक्स करती हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इन लेग्यूम रूट्स में एंड प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर. सो ये सॉइल तक ये सभी न्यूट्रिएंट्स को वापस डिकम्पोज करके उसमें मिक्स कर देती हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज देयर द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सम आर पैथोजेंस and cause disease in human being. Example, cholera, typhoid, tetanus forms animals and pets like anthrax, pneumonia and crop plants. Example, citrus and canker. कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स में जैसे वाटर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ह्यूमन बींग्स में कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस इन सब चीज़ को इन सारी डिजीज़ को कॉज करते हैं. एंड कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो घर पे होते हैं, पेट्स एनिमल्स वगैरह, उनमें भी अगर कुछ ये बैक्टीरिया जैसे एंथ्रेक्स है, निमोनिया है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं. एंड कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो कुछ प्लांट्स को भी हार्मफुल करते हैं. एग्जाम्पल है साइट्रस, कैंकर. नाउ बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय द फीजन. इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है इट मीन्स दे कैन बी डिवाइड बाई एसेक्सुअली. सो ये किस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होती हैं? दैट्स अ फीजन. फीजन इज मीन्स डिवाइड इनटू, it means single cans, they can be divided into the two parts. So this one is the fission. Now under unfavorable condition they produce spores. ये unfavorable condition के टाइम से स्पोर का फॉर्मेशन करती हैं. Now sexual reproduction, genetic recombination occurs by the primitive methods of DNA transfer from one bacterial cell to the another cells. Now next point, what is next heading is there. Now next heading is cyanobacteria. Cyanobacteria is known as blue-green algae. This one is the blue-green algae are photosynthetic autotrophs. Cyanobacteria जो होती हैं वो photosynthetic autotrophs होती हैं. It means they can make the food in the presence of sunlight. So क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. So they make the food by own self in the presence of sunlight. They are often unicellular, colonial और filamentous होती हैं. The colonies are often surrounded by the gelatinous sheet. सो ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है. ये एक सिंगल सेल की होती हैं. कॉलोनियल और फिलामेंटस होती हैं. कॉलोनीज जो होती है वो सराउंडेड होती है किससे? जेलाटिन सीड से. नाउ दीज आर द एक्वेटिक, बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर एंड ऑल्सो ऑकर्स एट मॉइस्ट प्लेसेस. दे ऑफ्टन फॉर्म्स ब्लूम्स इज पोल्यूटेड वाटर बॉडीज. ये जो होती हैं ये एक्वेटिक पाई जाती हैं, मैराइन एंड फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं. सो इट ऑकर्स इन द मॉइस्ट प्लेसेस में, ये मॉइस्ट प्लेसेस में भी प्रेजेंट होती हैं और ये फॉर्म करती हैं एल्गल ब्लूम्स को. व्हाट इज फॉर्म इन देयर? द एल्गल ब्लूम्स इन द पोल्यूटेड वाटर. ये पोल्यूटेड वाटर में आसानी से ग्रीन कलर की जो आपको एल्गी दिखाई देती है, जैसे तालाब के पानी में आपको इस तरीके से दिखाई देती हैं. सो दिस वन इज द they form the algal blooms in the polluted water bodies. Now they possesses chlorophyll,
सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। इनमें क्लोरोफिल जो होता है वो फाउंड होता है, पाया जाता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। नाउ दे पोसेसेस क्लोरोफिल, कैरोटीन एंड ज़ेनथोफिल एंड कैरेक्टरिस्टिक एसेसरी पिगमेंट। इनमें ये पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं, सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोइलेक्ट्रिन ऑल्सो, like similar to the green plants. So many of them have the capacity to fix the atmospheric nitrogen with the help of specialized cells called the heterocytes. आप यहाँ पे डायग्राम पे देख रहे हैं कि कुछ सेल्स हैं जिनके बीच में कुछ ब्लैक कलर के स्पॉट्स आपको दिखाई देते हैं। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सो हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, इन सेल्स को हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। फॉर योर एग्जाम्पल नोस्टॉक, ये डायग्राम जो है वो किसका है, नोस्टॉक का है, एंड एनाबीना, हेंस दे आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजेशन स्पेशली इन द राइस फील्ड। ये एक बायो फर्टिलाइज़र का वर्क करते हैं, और किस क्रॉप के लिए, राइस के लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द स्पाइरोलम। स्पाइरोलम यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया होती है, इसमें रिच इन प्रोटीन एंड यूज्ड एज अ फाउंड फूड सप्लीमेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, इवन फॉर स्पेस ट्रेवलर। ये स्पाइरोलम जो होती है वो यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया होती है। ये प्रोटीन से पूरी भरी हुई होती है, इट मीन्स रिच ऑफ प्रोटीन। इस बैक्टीरिया में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। इज़ यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट, और इस तरीके का जो स्पाइरोलम जो होता है इसे फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है ह्यूमन बींग्स में। ह्यूमन बींग्स फॉर स्पेस ट्रेवलर, जो लोग स्पेस वगैरह में ट्रेवल्स करते हैं उन्हें प्रोटीन जो होता है वो स्पाइरोलम साइनोबैक्टीरिया के फूड के फॉर्म में सप्लीमेंट के रूप में ह्यूमन बींग इसे यूज़ करते हैं। लास्ट वन इज़ देयर यूबैक्टीरिया इंक्लूडेड। यूबैक्टीरिया का सबसे लास्ट ऑर्गेनिज्म है। सो दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल। ये सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये सेल वॉल इसमें नहीं पाई जाती है। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये जो होते हैं एनारोबिक होते हैं, ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं। एंड मैनी ऑफ देम आर पैथोजेनिक, कॉजेज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। और ये जो ज़्यादातर इसके ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पैथोजेनिक्स होते हैं, ये कॉज करते हैं डिजीज़, वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। So today my topic is completed here. Now we discuss about next topic in the next video. Now my next topic is there, the kingdom protista. Thanks.